ख़वातीन और हज़रात, कहकशां के सितारों की इस महफ़िल में आज एक और बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही क्वालिफ़ाइड लर्नड पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफ़ेसर शबात हुसैन साहब। शबात साहब वर्कड एट द Department of Library and Information Science, AMU, from 1976 till 2017. During this period, he not only established himself as, well as a very fine teacher, but also as a prolific author, an administrator, and a devoted library professional. He has served the coveted position of President of the Indian Library Association, the oldest national body of librarians and informational professionals in India. He is known at the national and international levels for his professional achievements and his publications. Professor Hussain did his MSc in 1973, followed by BLib, MLib from AMU, and he was awarded gold medal for standing first class first at bachelor's course. He later completed his MPhil in information technology from Loughborough University of Technology, England, and his PhD from Lucknow University. Dr. Hussain started his career as a lecturer in the Department of Library and Information Science, and during his entire career of 40 years, he has served as chairman of the department for about 15 years, as university librarian for about 4 years, and also held the position of dean as a senior most professor in the Faculty of Social Sciences. In addition to that, he held a number of prestigious appointments in AMU as acting vice chancellor, provost, officer on special duty, till he retired in 2017. Professor Hussain has traveled extensively for his academic and professional assignments, including seminars and conferences presenting his publications, his papers. Professor Hussain is a prolific writer, contributing 8 books and about 50 research articles to his credit. One of his books on library classification, published by McGraw-Hill Publications, New York, is consulted worldwide. Another book on Dewey Decimal Classification was translated into Arabic by none other than Al-Azhar University, Egypt. About 12 PhDs have been awarded under his supervision. Professor Shabat Hussain took over additional charge as the librarian of Maulana Azad Library in 2008. And as we all know that Maulana Azad Library is one of the finest and biggest libraries in Asia. And during his 4 years of librarian as university librarian, this library has undergone total metamorphosis. And when he was the dean of the Faculty of Sciences, he developed a social science cyber library, one of its kind in the world. It is being accessed by 175 countries and has found its entry in the Limca Book of Records and even on Wikipedia. Professor Shabat Hussain was awarded Lifetime Achievement Awards a couple of times, in fact 4 or 5 times, by the Asia and Indian Library Associations in recognition of his 40 years of distinguished services and outstanding contributions to library science, and Professor S.P. Narang Research Promotion Award. डॉक्टर शबात हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला मेरे इस प्रोग्राम के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत मुजीब साहब, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया इस बात का कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने का मौका दिया, और दूसरा शुक्रिया इस बात का जो आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरे जैसे अदना आदमी के लिए पेश किया। मुझे लगता है उसमें आपने काफ़ी वक्त डिवोट किया गूगल से या जिस तरह से भी, और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपने जो डिस्कवर करी हैं इस खाकसार के बारे में वो ठीक है। ज़रा सा कुछ मैं ऐड करने की इजाज़त चाहूँगा। वो ये है कि जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात होती है तो ये करीब प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की एसोसिएशन है, कवर करती है लाखों लाइब्रेरीज को, जो हर तरह की लाइब्रेरीज जो कि इंडिया में हैं। अब वो उसके नौयत ऐसी नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी, और मुझे जो है वो उन्होंने अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बनाया इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का,
और मुझे खुशी है इस बात को शेयर करते हुए आपसे और एएमयू कम्युनिटी से कि हमारे जो एक टीम बनी थी मेरे सुपरविजन में ड्यूरिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, हमने वो काम करके दिखाया कि वो आज भी याद करते हैं। सारी उनकी पेरिनियल प्रॉब्लम्स जो हैं जी। वो सारी हमने दूर कर दी। जी। और वो एक साइट के थ्रू जो ILAindia.com है, हम्म। उसमें आप देख सकते हैं, उन्होंने आज भी मेरा नाम रिटेन किया हुआ है। जी। और उस और एएमयू के बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन कुछ लोगों के जहन में था, वो उससे किसी हद तक काफी दूर हो चुका। जी। तो एक बात मैं ये शेयर करना चाह रहा, दूसरी बात ये है कि जहाँ अपॉइंटमेंट्स का मामला है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मुझे 3-4 जगह जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गवर्निंग बॉडी में रखा। जी। खास उसमें से जो है वो एक तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पाटना, जी। जहाँ वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जखीरा है मैन्युस्क्रिप्ट्स का। बिल्कुल। और गवर्नर ऑफ बिहार जो है वो उसको चेयर करते हैं। जी। उस वक्त कई गवर्नर्स आए 5 साल के दौर में, लेकिन कुछ अरसे के लिए कोविंद साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे वो बिहार के गवर्नर थे जी। प्रेसिडेंटशिप से पहले। जी। और उन्होंने मुझसे अच्छा खासा काम लिया वहाँ पर। जी। और वो भी हमारे काम से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर काफी खुश, डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के सिलसिले में। जी। तो ये कुछ चीजें हैं। और फिर इलाहाबाद म्यूजियम का भी गवर्निंग बॉडी का मैं मेंबर रहा। जी। ऐसे ही कलकत्ता में एक म्यूजियम है, उसका मेंबर रहा मैं जी। गवर्निंग बॉडी का। जी। जी। तो शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके जो सवालात हैं मेरे मुझसे आप करना चाहते हैं जी। जी। जी मेरे शबाब भाई, मैंने प्रोफेशनल के सिलसिले में। गूगल के अलावा जो अपना होमवर्क किया है वो आपके बहुत सारे कलीग्स जिनके साथ आपने इतने सारे काम किया है और जो आपकी पर्सनालिटी से आपकी शख्सियत से मुस्तफ़ीद हुए हैं और आप आला मकामात पर हैं, तो उनको भी मैंने रुजू किया और उनसे भी काफ़ी आपके बारे में मैंने मालूमात हासिल करी। तो शबाब भाई, पहला सवाल मेरा ये है कि आपका जो तालीमी सफ़र वो कहाँ से शुरू हुआ, और उसमें एक दिलचस्प चीज़ ये देखने में आई कि आपने एमएससी बॉटनी से गालिबन किया था, उसके बाद यू स्विच्ड ओवर टू लाइब्रेरी साइंसेस। तो ये तब्दीली क्यों आई, और अगर आप हमें अपने इब्तदाई तालीम के बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके इंटरव्यू शुरू करने से पहले, जवाब देने से पहले, जी। मैं एक शेर आपको पेश करना चाहूंगा, शाह। क्योंकि आप भी एक लिटरेरी टेस्ट के आदमी हैं। जी। कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जी। जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। जी। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ कहाँ तमाम तमाम। करूं। क्या बात। वो फसाना असल शुरू में करता शबाद हूँ। भाई, फसाना असल में इतना लंबा है कि मैंने बड़ा बड़ा मुख्तसर करते 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 फिर भी वो इतना 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन माशाल्लाह जो है आपका हो गया है। जी। चलिए, मैं बात अपनी शुरू करता हूँ 1968 से, जब मैं अलीगढ़ आया था जी। बीएससी के स्टूडेंट की हैसियत से। जी। तो एक साल के बाद इंटरनल हो गया, तो मैंने सबसे पहले एमबीबीएस में टेस्ट में बैठा। हाँ। हाँ। तो उस वक्त 50 सीट होती थी। हम्म। और मेरा सिलेक्शन तो हुआ उसमें, लेकिन मेरा नंबर 7वां था वेटिंग लिस्ट में। अच्छा। जी। एक साल और जब सेकंड ईयर मैंने ड्रॉप करके नहीं तैयारी करी एमबीबीएस की, हम्म। साथ में चलता रहा। हम्म। अगले साल भी मैं बैठा, फिर भी वेटिंग लिस्ट में रहा। तो मैंने सोचा कि अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है कहीं हम्म। और ले जाना है। हम्म। तो मैंने बीएससी किया, फिर एमएससी किया बॉटनी से। हम्म। क्लास थी। हमारे कजिन ब्रदर थे प्रोफेसर सैयद असरार हुसैन, आप जानते होंगे शायद। जी। तो लीडिंग निमेटोलॉजिस्ट थे। जी। तो मैंने उनसे मशवरा किया कि मैं पीएचडी करने का ख्याल है मेरा। लेकिन उसी साल बोर्ड ऑफ स्टडीज ने बॉटनी के ये फैसला किया कि लैब्स जो हैं वो फुल हैं, अच्छा। और हम कोई भी एडमिशन नहीं करेंगे इसमें इस साल। अच्छा। तो बड़ा सेटबैक था। लेकिन वो हमारे कजिन ब्रदर बड़े हमारे मेंटर थे। उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंपैरेटिवली बहुत नया डिपार्टमेंट है यहाँ,
ओपनिंग अच्छी हो सकती है, तो हम्म आप इधर आ जाइए। थोड़ा रिलेक्टेंटली मैं इधर आया, हम्म। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को जहाँ जहाँ से रोजी देनी होती है वो सही। वहीं पहुंचा। बिल्कुल तो सही। मैंने वहां से बीलियम एमलिप किया जैसा आपने बताया, और आ, मुझे एक कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिला था, जो अच्छा। प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। जी और उसी के तहत मैं लफबरो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गया, और वहां से मैंने एमफिल किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और वही मेरा एक बेस बना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, हम्म। जिससे जो है वो आगे हम कुछ काम कर सके इस जी फील्ड में। जी फिर जाहिर है जैसे आपने बताया कि पीएचडी वगैरह। जी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन एजुकेशन के सिलसिले में। गुड। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ महसूस की है शवाद भाई, कि बहुत सारे लोग असल में एक एक बड़ा जिसे कहते हैं स्टीरियोटाइप हमेशा से अलीगढ़ में रहा है कि कुछ जो कोर्सेज थे उनके एमबीबीएस या इंजीनियरिंग या कुछ लेटर इयर्स में एमबीए, उसके अलावा जो लोग थे वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा समझा जाता है कि शायद थोड़े से यानी निचली कैटेगरी के हैं। लेकिन जो एमबीबीएस के बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स थे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेटर दे प्रूव टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, यानी इन इन देयर प्रोफेशंस, और मुख्तलिफ जगहों पे वो गए और कई लोगों ने वाकई बहुत नाम कमाया। तो आपने शवाद भाई 40 साल के करियर में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए और बहुत सारे बदलाव किए, खासतौर पर ऑटोमेशन और डिजिटल रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में बड़े रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए। तो इन तब्दीलियों के बारे में आप अपनी निगाह से कैसे देखते हैं? हाउ वुड यू एक्सप्लेन दीज चेंजेस जो कि आप इस इदारे में लेकर के आए? जी मुजीब साहब, बड़ा दिलचस्प सवाल है। और मैं, आपने ऐसी बात छेड़ दी है कि मैं आपको 5 मिनट जरूर लूंगा इस चीज के ऊपर। जी जी कि असल में मेरा एक्सपोजर जो रहा, और डेवलप्ड कंट्रीज, 5 डेवलप्ड कंट्रीज में मुख्तलिफ प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए मैं गया, जी। कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, पेपर प्रेजेंट करने के लिए। हम्म तो मेरा एक विजन था लाइब्रेरी के लिए। हम्म और जब मैं आके लौटता था और देखता था इस लाइब्रेरी को, तो मुझे ये बहुत ही दकियानूसी 100 साल पुरानी लाइब्रेरी लगा करती थी। हम्म। लेकिन जाहिर है कि इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। मैं सोचता ही रहता था, और कर तो कुछ नहीं सकता था, मैं तो अपने टीचिंग में था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, जो अल्लाह को मंजूर था, कि वो मुझे एक ऑफर इस लाइब्रेरी को एज ए लाइब्रेरियन इंचार्ज जी। ज्वाइन करने के लिए वाइस चांसलर ने मुझे ऑर्डर निकाला। हम्म तो वो मेरे पास एक ऐसा मौका हुआ कि मैंने सोचा कि नाउ इट इज द टाइम आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग, हम्म। not only for this library but for the whole community and the decades, of future generations. जी। तो मैं इसमें आके इसके रीऑर्गेनाइजेशन में टोटली लग गया। अब ओके। मैं आपको लाइब्रेरी का जो भी मुख्तसर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप मेरी नज़र से देखिएगा लाइब्रेरी को। जी आप जब लाइब्रेरी में एंटर होते हैं, तो जो गेट है जी उसका आर्किटेक्चर आपको मालूम होगा जी जी। कि फिरोज अहमद एक माने हुए आर्किटेक्ट थे उस जमाने के। और वो हैदराबाद से ताल्लुक था उनका, अच्छा नवाब के पीछे। जी। अच्छा। इसीलिए कुछ जो उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो एलिवेशन बनाया है, हाँ हाँ। उसमें उसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी है। ओके। जी। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो हमारी लाइब्रेरी है, जी आप जरा सा विजुलाइज करिए कि एक हेमिस्फेयर है, जो गेट है, जी। और वो एक 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। ओके। वो जो हेमिस्फेयर है एक्चुअली, हाँ हाँ। वो एक वो एक हेमिस्फेयर ब्रेन की शक्ल का है, ऑलराइट। जैसे ब्रेन है। जी। इंटरेस्टिंग। और उसके अंदर उन्होंने काले काले छोटे छोटे चीजें डाली हैं। जी। तो वो फेसिक उनको आप कंपेयर कर सकते हैं फेसिक्यूल्स ऑफ नॉलेज से। वाह। जी। इंटरेस्टिंग। जी। क्योंकि ऐसा है, आर्किटेक्ट बिल्कुल वही शायर वाली बात है कि शेर में क्या कह रहा है। सही बात। आर्किटेक्ट का भी यही काम है कि हाँ। वो क्या एक्सप्रेशन देना चाह रहा है इसके अंदर। सही। तो वो मैं आपको जरा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा जी। कि ये एक
ह्यूमन ब्रेन का रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से। वेरी वो इंटरेस्टिंग। एक हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन जिसके अंदर फेसिक्यूल्स ऑफ नॉलेज अरेंज हैं, जी। और वो चार पिलर्स के ऊपर खड़ा है। हम्म। चार पिलर्स जो है, आप देखेंगे या जानते होंगे या गूगल पे देखिएगा कि मशहूर है फोर पिलर्स ऑफ नॉलेज, जी। फोर पिलर्स ऑफ फिलोसफी। जी। और इस तरह से आपको कई चीज ऐसी मिलेंगी जिसके फोर पिलर्स मिलेंगे। जी। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जी। मेरे फोर पिलर्स जो हैं वो चार हैं। एक पिलर है डेटा, अनऑर्गेनाइज डेटा। हम्म। जब ऑर्गेनाइज हो जाता है तो दूसरा पिलर इंफॉर्मेशन का बनाता है। जी। जब इंफॉर्मेशन सिस्टमेटाइज हो जाती है जी। तो वो नॉलेज बनाती है। जी। और जब नॉलेज गेन होती है वो इस्तेमाल होती है एज ए पार्ट ऑफ विजडम। ओके। तो मैं इसको कहता हूं कि डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गुड। और विजडम, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, जी। ये चार पिलर्स हैं जो जी। ये फ्रंट पे। जी। और जब मैं आया था यहाँ एज ए स्टूडेंट, उसका वक्त वो याद आता है मुझे। सेंटर में एक जाली लगी हुई है रेड कलर की, हम्म। उसके पीछे की तरफ एक हम्म। कंदील नुमा लटका रहता था कंदील, उसके अंदर एक बल्ब जला करता था। वो बड़ा अच्छा। सिंबॉलिक था। और वो सिंबॉलिक ये था कि नॉलेज इज एक्चुअली लाइट। ट्रू। जहाँ जहाँ लाइट, जहाँ नॉलेज है वहाँ रोशनी है। रोशनी है, सही जहाँ बात है। नॉलेज नहीं है वहाँ अंधेरा है। सही बात है। जब रोशनी है तो अंधेरा खुद चला जाता है। सही। वो वो एक सिंबॉलिक उसका रिप्रेजेंटेशन था, जहां तक मैं समझता हूँ। और जी। मेरा ये इंटरप्रिटेशन है। अब जी। जरा सा आप अंदर जाएंगे तो वहां पर लगा हुआ है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अल्लमल इंसान मालम यालम। जी। वो एक उस जमाने के पेंटर थे, सकलैन नाम था गालिबन उनका। अच्छा। तो वो फिर पाकिस्तान चले गए थे। जी। उनकी पेंटिंग है और उसमें वो अल्लमल इंसान मालम यालम, वो उसमें लिखा हुआ है। जी। और मैंने उसमें एडिशन ये किया कि जो एक कंसेप्शन है मुसलमानों के बारे में हम्म। कि ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, इलिटरेट हैं, अपने यहाँ की लेडीज को पढ़ने नहीं देते हैं। तो हम्म। मैंने अब्दुल रहीम किदवाई साहब, आप वाकिफ ही हैं उनसे, जी। 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 अब्दुल रहीम किदवाई साहब से मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे कुरान और हदीस की रूह से कुछ उसके अंदर कोटेशन निकाली, जो हम्म। मैंने प्लेट की शक्ल में वहां पर उसके वो जो बाहर का हॉल है उसके अंदर मैंने लगवाई। लगवाएं तो जी। वो एक टोटलिटी हो गई। उसी में मुझे याद आता है जी। कि मेरी जो भी किताबें इंटरनेशनल पब्लिशर ने छापी, जी। उसमें जो मेरा डेडिकेशन होता था, जी। तो वो होता था कि अल्लाह वल इंसान मालम यालम से रिलेटेड, कि हम्म। टू whom who taught me what I knew not, dedicated to whom who taught me what I knew अमेजिंग। not। ये अमेजिंग। मेरा डेडिकेशन हर उसमें। अमेजिंग। खैर, जब मैं मुझे ये चांस मिला तो मैंने रीऑर्गेनाइजेशन टोटल किया। और जी। सबसे पहला काम ये किया कि जो एक सातवें फ्लोर के ऊपर जंकी यार्ड बना हुआ था, जी। लाइब्रेरी खुद ही, मतलब स्पेस हमेशा कम होता है लाइब्रेरी के अंदर, तो जी। उस जंकी यार्ड को साफ किया मैंने। जी। हिंदी डिपार्टमेंट को वहां पर एक वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट बना दिया, बहुत कलेक्शन भी, रीडिंग रूम भी, कंप्यूटर भी, खूब कारपेटिंग वगैरह करके, ताकि हम्म। किसी को कहने का मौका ना मिले। हम्म। सातवें फ्लोर के ऊपर एसी लगवा दिए वहां पर। हम्म। और वो जो जगह खाली हुई उसके अंदर हमने पर्शियन और उर्दू का कलेक्शन जो बिचा हुआ था, जी। उस कलेक्शन को हमने स्प्रेड आउट किया उस जगह में। हम्म। और वहीं पर हमने रीडिंग रूम बनवाया और कंप्यूटर्स वगैरह भी लगवाया। हम्म। जहां तक डिजिटाइजेशन की जो आपने बात करी है, जी। तो 2009 में हमने तीन चीजें इनॉग्रेट कराई थी जो प्लेक अब भी लगा हुआ है गेट के ऊपर। हम्म। कि एक तो डिजिटल रिसोर्स सेंटर बनाया, अच्छा। और उस डिजिटल रिसोर्स सेंटर के अंदर तकरीबन 2 लाख ई बुक्स और एनसाइक्लोपीडियाज वगैरह थे। जी। दूसरा काम हमने इसमें ये किया कि सीसीटीवी का नेटवर्क बहुत जरूरी था देखने के लिए कि कौन काम क्या क्या कर रहा है वहां पर। सही। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी गेट हम्म। लाइब्रेरी के अंदर, वो हम्म। बहुत जरूरी था। उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि 13 लाख, 13.5 लाख किताबें, उनके अंदर चिप्स डालना और फिर सिक्योरिटी गेट लगाना, हम्म। ताकि जो है अनऑथराइज्ड किताब ना ले जा सके। सही। उस काम को भी अंडरटेक किया हमने। और वाह। वो काम भी हमने
2010 तक जो है ये काम पूरा कर लिया उसके अंदर। अमेजिंग। इसके अलावा ये हुआ कि ऑनलाइन कैटलॉग जो बनाई हमने, जी। उसको हमने कनेक्ट कर दिया कैंपस नेटवर्क से। अच्छा। तो कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी बैठे हैं, तो आप जो है लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को कंसल्ट कर सकते हैं। वाह। उसी बीच एक डेवलपमेंट और हुआ जी। कि मसरत अली साहब थे मरहूम, फेडरेशन प्रेसिडेंट थे फेडरेशन ऑफ एएमयू एलुमनाई एसोसिएशन के यूएसए में। अच्छा। आप शायद वाकिफ हो, बहुत अच्छे, जैसे कि फ्रैंक इस्लाम साहब का नाम सुनने में आता, वो भी उसी जी। लेवल के आदमी थे। जी। और बायोटेक्नोलॉजी के आदमी थे, बड़ा अच्छा बिजनेस था उनका। जी। तो वो भी सर सैयद के बड़े मद्दाह थे। तो वो आए, उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी से एक फेडरेशन और एएमयू के बीच में एक एमओयू किया। जी। और उन्होंने कहा कि सर सैयद का जो कलेक्शन है, जी। बुक्स बाय सर सैयद, बुक्स ऑन सर सैयद, अच्छा। उनको हम डिजिटाइज करेंगे और डिजिटाइज करके हम जो हम्म। है sirsayyedtoday.com एक साइट बनाएंगे। अच्छा। और वो एक हफ्ते के लिए आए, और उन्होंने वाइस चांसलर से कहा, हमने राउंड द क्लॉक काम किया, और एक हफ्ते के अंदर ये सारा काम पूरा कर लिया डिजिटाइजेशन अमेजिंग। का। जी। और उसके बाद साहब उन्होंने साइट बनाई, और उसके बाद फिर आए वो, और साइट का इनॉग्रेशन उन्होंने 2010 में हमारे मौलाना लाइब्रेरी का जो कल्चरल हॉल है उसमें जी। फंक्शन हुआ। जी। और 35 सीडीज उन्होंने बहुत अच्छा ये किया कि उसको प्रिजर्व करने के लिए 35 सीडीज के ऊपर जी। वो सारा डिजिटाइज मटेरियल कर दिया, जिसकी एक कॉपी उन्होंने वाइस चांसलर को प्रेजेंट करी, एक कॉपी मुझे प्रेजेंट करी उन सीडीज की। मैं जी। तस्वीरें आपको भेजूंगा, वो हैं। जी। और वो अब भी मैं समझता हूँ कि मौजूद होंगी। वो साइट कई साल तक चलती रही, जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो उनके इंतकाल, अनटाइमली बेचारों का इंतकाल हो गया था, बहुत भले आदमी थे। जी। लेकिन यह है कि वो साइट की समहाउ बंद हो गई। हम्म। और मैं गुजारिश करूंगा आप जैसे लोगों से कि अगर उसको आप किसी तरह से रिवाइव कर सकें। जी। मुजीब साहब, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आजकल जो रिसर्च है, जी। वो रिसर्च है ऑनलाइन रिसोर्सेज के बेसिस के ऊपर। ज्यादातर बिल्कुल सही जब बात। तक जब तक आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपकी जी। रिसर्च आगे नहीं बढ़ सकती। सही बात। तो बड़ा मसला था, यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं था कि वो रिसोर्सेज मुहैया करे। जी। और हमने ये सोचा कि इसको किस तरह से करें, कि पैसा तो है नहीं, हम्म। फिर भी रिसोर्सेज हमें चाहिए, हमारे हमारे कम्युनिटी को, रिसर्च कम्युनिटी, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को चाहिए। हम्म। और कैंपस नेटवर्क के ऊपर खाली कैटलॉग देखने से क्या फायदा है। हम्म। तो साहब, सब कुछ ऊपर वाले की तरफ से। अपने एक दोस्त थे, डायरेक्टर थे इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, जो यूजीसी का कंपोनेंट है। वो है तो पोस्ट डायरेक्टर की, लेकिन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के इक्विवेलेंट होती है। जी। हमारे प्रोफेशनल फ्रेंड थे, लाइब्रेरी साइंस के आदमी थे, भला आदमी था। जी। तो हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज करी। वाइस चांसलर को हमने बताया कि ये बहुत पावरफुल आदमी है, और इसके हाथ में है कि 60 यूनिवर्सिटीज को वो सेलेक्ट करे, और जो यूजीसी ने सारे जो रिसोर्सेज है ऑनलाइन, हम्म। इनके हाथ में दे रखे हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं। अच्छा। अब जी, तो हमने उनको बुलाया एज ए चीफ गेस्ट। बहुत शानदार फंक्शन किया, उनको शॉल वगैरह आप जानते हैं ऑनर करने के लिए, फिर साइटेशन। वाइस चांसलर पी के अब्दुल अजीज साहब थे, एकेडमिशियन थे, जी। बड़ी ख्वाह थे यूनिवर्सिटी के। जी। तो इन चीजों को बहुत ग्रैब करते थे। उन्होंने भी साहब अपना बड़ा अच्छा एड्रेस पढ़ा। तो कौन साहब थे वो? वो जगदीश अरोड़ा नाम है उनका, डायरेक्टर है, डायरेक्टर थे उस वक्त, उस जमाने अच्छा। में अच्छा। अच्छा। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। मैंने बताया वो इक्विवेलेंट टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर पोस्ट है। जी। जी। यार वो बहरहाल, उनको हम फिर उनकी इतनी तारीफ वगैरह हुई, सब जेन्यून थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। लेकिन ये है कि ओकेजन निकालना पड़ता है। जी। फिर खाना आप जानते होंगे, भूरा बहुत अच्छा कुक है यहाँ पर, जी। उससे जी। खाना बनवा के हमने उनको अपने लाइब्रेरियन का बड़ा चैम्बर आपने देखा होगा वहाँ पर, कुछ लोगों के साथ, उनको सेलेक्ट लोगों के साथ खाना वगैरह खिलवाया। बहरहाल ये कि ही वॉज टू हैप्पी, जो अच्छा। उनको वहाँ पर वेलकम किया गया।
जी। तो जब उनके शाम को चलने का मौका होने लगा तो मैंने कहा, "हाँ भाई अरोड़ा साहब, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप वहां पर बैठे हुए हैं, जी। तो आप बताइए कि साहब हमारी यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं मिलेगा आपकी तरफ से क्या? जी। आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से जब जाऊं तो लोग ये कहेंगे उस शहबाज साहब ने तो कुछ किया ही नहीं?" जी। तो वो कहने लगे कि बताइए आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा ये ऑनलाइन डेटा बेसिस हैं इतने सारे आपके पास, आप हमारी यूनिवर्सिटी को दीजिए। हम्म। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल दूंगा। उन्होंने कमिट कर लिया और उन्होंने अपना कमिटमेंट निभाया। तो गुड। मैं आपको मुख्तसर बताना चाहता हूँ, वेब ऑफ साइंस, जी। साइंस फाइंडर, और 1,000 ऑनलाइन जर्नल्स थे, क्या कहते हैं, साइंस डायरेक्ट के। अच्छा। और 1,000 जर्नल्स जो थे वाइली, जो पब्लिशर है उसके जर्नल्स थे। जी। एक हेल्थ साइंस के अरमेड, वो है, 2400 जर्नल्स उसके थे। हम्म। टोटल कॉस्ट उनकी थी 22.20 करोड़। ओहो। जी, वो इतने महंगे होते हैं भाई। जी। तो वो सब हमें फ्री मिले। और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त मैं इतने ही दूंगा और भी दूंगा आपको बाद में। खैर वो फिर अकेजन नहीं आया। तो जी। बहरहाल ये हुआ कि 2012 में तो छोड़ ही दिया था मैंने, 2011 में उसने ये सब कर दिया था। जी। मुझे सब, बास लोग जो हैं अनसंग हीरोज होते हैं। जी। इसकी वजह से ये जो हमने कैंपस नेटवर्क के ऊपर ये सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हमने जो डाल दिए सारे, जी। उनकी एक्सेस कर दी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, जी। उसका नतीजा मालूम क्या हुआ? जी। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ऊपर आ गई, जो माशाल्लाह। शाह साहब के जमाने में आई। जी। तो लोगों को बैकग्राउंड नहीं मालूम है। हाँ, अच्छा। हाँ, लेकिन यह है कि वही चीज अब चल रही है। जी। जी। अब उसमें कितना कौन क्या कितनी चीजें वो दे रहे हैं फ्री और कितनी खरीद रही है यूनिवर्सिटी मुझे नहीं मालूम। जी। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ कभी। तो बहरहाल ये जरूर है कि जो शाह साहब के जमाने में हर साल रैंकिंग बढ़ती गई, उसकी हम्म। सबसे बड़ी वजह यह है कि नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बढ़ रहा है। और जी। जी। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कब बढ़ेगा? जब जी। आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज आपकी टेबल पर अवेलेबल होंगे। ग्रेट। ग्रेट। जी। इसके अलावा एक और चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि उसी जमाने में वर्ल्ड ई बुक फेयर, गुटेनबर्ग प्रोजेक्ट था एक। हम्म। उन्होंने 2009 में एक ये बुक फेयर, ई बुक फेयर रखा। अच्छा। और उसके अंदर उन्होंने पब्लिसिटी के लिए 2.5 मिलियन बुक्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने कहा कि डाउनलोडेबल हैं, ये हुसोएवर वांट्स टू डाउनलोड, लाइब्रेरीज या स्कॉलर्स। खैर वो हम्म। हमें पता चला और हमने एक तो नोटिफिकेशन किया सारे डिपार्टमेंट्स में कि हम्म। भाई ये लिंक है, इससे आप अपने सब्जेक्ट की जो किताबें चाहें फ्रीली डाउनलोड करिए। और मैंने ये किया कि 10 सिस्टम के ऊपर 10 लोग बिठा दिए और हम्म। उनको एक ट्रिक बता दी कि ऐसा करो कि जो सब्जेक्ट में रिनाउंड पब्लिशर्स हैं, आप पब्लिशर वाइज डाउनलोड करिए, बुक वाइज डाउनलोड मत करिए। जी। तो उस वक्त उसका नतीजा ये निकला कि 1.7 लैक्स ई बुक्स 10 दिन के अंदर वो वो हम डाउनलोड लोगों कर ने ली। डाउनलोड कर ली। आप सोचिए कितने करोड़ रुपए की होंगी। सही और बात। वो अब भी जो है अवेलेबल है। नॉलेज तो बेकार होती नहीं है। सही बात, ठीक है। बिल्कुल सही बात। तो उस वक्त तो वो लेटेस्ट थी, अब फिर भी काम में तो आती है। जी। तो जी। एक मामला ये हुआ। जी। दूसरा एक चीज और शेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें जी। थोड़ा सेटबैक भी हुआ हमारी एफर्ट्स में। जी। हमारा मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो कलेक्शन है, तकरीबन 16,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जी। जिसकी वजह से लाइब्रेरी जानी जाती है। हम्म। उसके डिजिटाइजेशन का मसला था। हम्म। वो कोई आसान काम नहीं था, उसके लिए भी रिसोर्सेज की जरूरत थी। जी। लकीली ये हुआ कि जुमा अल माजिद सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज दुबई में है। अच्छा। और रॉयल फैमिली के हैं माजिद साहब। जी। मैं गया भी उनके सेंटर पे। जी। तो उनसे और एएमयू के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ। सेंटर और एएमयू के बीच में एक एमओयू साइन हुआ।
जी। जिसमें उनका ये था कि साहब वो हमारे सारे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करेंगे यहीं आकर, अच्छा। और उसके बदले में वो उनके पास जो कलेक्शन है उतने ही हमसे ले लेंगे। जब मान लीजिए उन्होंने जो है 10,000 किए, तो 10,000 वो अपने कलेक्शन में से हम्म। हम हमें दे देंगे, हम्म। तो वो हमारा एडिशनल हो जाएगा। अच्छा। और इसके अलावा उन्होंने एक मशीन इजाद की थी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल में, वो उन्होंने इजाद ही की थी। वो अच्छा। उन्होंने अमेरिका में बनवाई थी। ओके। उसकी कॉस्ट तकरीबन उस वक्त 10 लाख रुपए थी। उन्होंने अच्छा। कहा कि एक हम आपको मशीन भी देंगे। हम्म। और वो काम बड़ा अच्छा था, वो काम शुरू हो गया। अब पता नहीं कैसे वाइस चांसलर के दिमाग में किसी ने ये डाल दिया कि ये जो इमेजेस हैं हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स की, हम्म। लोग इसको खरीदो फरोख्त शुरू कर देंगे। अच्छा। और वो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग वगैरह ये वो बहुत प्लीड किया, लेकिन वो बहरहाल वो फ्लॉप हो गया प्रोजेक्ट। आज भी जो है ये कलेक्शन जो है वो पूरी तरह डिजिटाइज नहीं हो पाया, चलिए, दैट्स अनफॉर्चुनेटली दैट्स फॉर। दैट्स अनफॉर्चुनेट, दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो तो ये सारी चीजें ये- मैं आपको नहीं, बताना चाह इसमें रहा था, और इसमें इसके अंदर इसमें कोई फीस दो राय समझ। नहीं है कि बड़ा बड़ा, यानी जब आप एज लाइब्रेरियन आपने टेक ओवर किया तो टॉक ऑफ द टाउन, और उसमें बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया जो आपने उसके अंदर तब्दीलियां आप लेके आए, और वो अब तक उसके बारे में चर्चा होती है। और उसके ऊपर एक सवाल मेरा है जो मैं आप मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर के और जो रेयर आप ने चीज़ें वहाँ पे डिस्कवर की उस पे मैं आऊँगा। लेकिन मेरे मेरे पास एक सवाल ये है शवाद भाई कि ये डिजिटल दौर है, और एक सवाल हमेशा से लोगों के जहनों में रहा है कि इस डिजिटल स्टॉर्म की वजह से जो लाइब्रेरीज हैं, यानी जो बुक बेस्ड आपका आपके पास डेटा है, तो उस पर कितना असर पड़ा है जो कन्वेंशनल मेथड था पढ़ाई करने का किताबों से, और इन फ्यूचर ऑल्सो लाइब्रेरी साइंस के ऊपर और लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के ऊपर ये किस तरीके से असरअंदाज होने वाला है। आ, आपके इस सवाल से पहले बस 1 मिनट और चाहूंगा आपको उस जी। जी। बात के कंटिन्यूशन में जो जी। मैं कर रहा था, जी। कि एक तो ये सारी जो तब्दीलियां हुई लाइब्रेरी के अंदर, जी। उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा वाइस चांसलर से नहीं मिला। हम्म। उसके बावजूद तब्दीलियां हुई। खुद बिल्कुल। वाइस चांसलर पूछते थे कि भाई ये हु गिव यू मनी, व्हाई डिड यू, ये कैसे कर लिया आपने। हम्म। मैंने कहा अल्लाह गिव मी मनी। अच्छा। और सिर्फ करता मैं क्या था कि जो रिसोर्सेस थे लाइब्रेरी के, जी। जो मैं समझता था कि यहाँ से बचत हो सकती है, हम्म। उनको बचा के हम्म। उसका रीअप्रोप्रिएशन करवा लिया करता था। वो कर देते थे वाइस चांसलर हम्म। अजीज साहब। हम्म। लेकिन उनकी कमजोरी ये थी कि पैसा मत मांगिए उनसे। अच्छा। तो लेकिन उसी से हमारा काम हो गया। हाँ, उन्होंने अगर पैसा दिया तो वो जो लिफ्ट 10 साल से बंद थी, हम्म। वो लिफ्ट उन्होंने, 7 स्टोरीड बिल्डिंग है आपको मालूम है, और सही। फिर हिंदी सेक्शन हमने वहां पहुंचा दिया था। तो सही। मैंने कहा कोई शिकायत ना पैदा हो जाए लोगों को। हम्म। तो साहब वो उन्होंने 10 लाख रुपए ओटिस की वो लिस्ट लिफ्ट के लिए उन्होंने दिए थे। एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग वाकया ये है जी। कि जो आपने कहा वो सही है। लड़कों में बड़ा अप्रिसिएशन था स्टूडेंट्स में, हम्म। क्योंकि वो अपने हॉल्स में मुझे बुलाने लगे थे चीफ गेस्ट वगैरह बना के, हम्म। जाहिर है। तो मैंने एक काम ये किया कि एक छोटा सा सफेद बोर्ड वहीं हॉल में रखा, और उसके ऊपर लगाया थॉट ऑफ द डे। अच्छा। whosoever wants to contribute, put it in the box there। हम्म। तो लड़कों में एक बड़ा मोटिवेशन होता है। हम्म। तो वो सब अपना कोई ना कोई कोटेशन अच्छी निकाल के लाते थे, उस बॉक्स के अंदर रख देते थे। हम्म। अब वक्त तो इतना नहीं था लाइब्रेरियन के पास, लेकिन हमारे खुसरो साहब जो रिटायर्ड रिटायर्ड जज थे, आप जानते होंगे, जी। आपके पड़ोसी, जी। तो रेहाना खुसरो के वालिद। जी। तो वो रोजाना आया करते थे लाइब्रेरी में। तो अच्छा। मैंने उनके जिम्मे एक काम किया। मैंने कहा, खुसरो भाई, ये बच्चों में बड़ा मोटिवेशन हो रहा है, रोजाना जो इनकी आती हैं कोट्स, इनमें से बेस्ट सेलेक्ट कर दीजिएगा आप। हम्म। और वही कोट जो है उसके ऊपर बोर्ड पे हम लिखवा दिया करते थे खुशखती से, हम्म। और नीचे लड़के का नाम लिख नाम देते थे लिख कि देते। इसका दिया गया है। सही।
सही। और लड़के बड़े मोटिवेटेड थे। जी। बहरहाल ये कि एक माहौल बड़ा अच्छा क्रिएट किया हुआ था वहां पर, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी उसमें अल्लाह ने दी। जी। जी, आपका जो वो दूसरा सवाल है, जी। मैं मुझे साहब एक मिसकंसेप्शन है जरा सा, अच्छा। जो ऑनलाइन रिसोर्सेज के सिलसिले में, जी। कि जो सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन, जी। जो आप समझते हैं कि फ्रीली अवेलेबल हैं, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। जी। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। जी। मसलन ये कि जैसे मेरी अभी एक किताब नॉलेज मैनेजमेंट पर रूले फ्रैंक टेलर एंड फ्रांसिस वाले, उन्होंने छापी है। तो अब ये सोचिए कि उसके अंदर किसके स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। पैसा पब्लिशर ने लगाया, जी। और ऐसे वैसे किताब नहीं छापते हैं। मतलब ये कि उन्होंने 4 रिव्यूअर्स दुनिया में कहीं से, उनकी जब रिपोर्ट आई पॉजिटिव, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया बगैर। फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग, पब्लिशिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, जी। पैसा किसका लग रहा है? जी। पब्लिशर का। सही। हमें क्या मिलना है? हमें और रॉयल्टी मिलनी है उसकी। जी। तो आप ये बताइए, अगर मेरी किताब फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी तो वो पैसा आएगा कहाँ से? सही बात है। ऐसा नहीं होता है। ये कॉपीराइट फ्री मटेरियल जो होता है, जी। वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है। जी। अदरवाइज ये और ज्यादा महंगे हो गई हैं किताबें। आप सोचिए। जी। अब ये मैं अपनी किताब की सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि जी। ये ई बुक की शक्ल में छापी उन्होंने, जी। और हार्ड कॉपी भी छापी उन्होंने। हम्म। ई बुक का उन्होंने एक कॉपी भेजी, उस कॉपी को मैं आपको नहीं भेज सकता हूँ। उसमें टेक्नोलॉजी वहीं रोक देगी मुझे। हाँ, 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 मतलब उसमें जो है वो पायरेसी नहीं हो सकती उसको आप मतलब आपकी है तो आप ही क्यों रहेगी, अनलाइक ये माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर जो है वो कोई भी क्रैक्ड वर्जन उसका डाउनलोड कर सकता है। तो नहीं, डाउनलोडिंग नहीं होगी, एक्सेस नहीं होगी। हाँ। ओके। एक्सेस नहीं होगी उसकी। और एक्सेस करने के लिए क्या होता है कि वो आपसे हर चीज की कीमत है। हम्म। अभी मैं देख रहा था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, हम्म। तो तेल अवीव से छपता है, लेकिन अच्छा एनसाइक्लोपीडिया है वो। तो हम्म। उन्होंने पूरे एनसाइक्लोपीडिया की एक्सेस की कीमत दी हुई है। हम्म। उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर, उसकी अलग से पिछले कीमत दी। 8, उसकी हर एक की अलग अलग कीमत है। कीमत है, जी, जी, जी। तो इंडिविजुअल रिसर्चर तो उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। सही। तो नेचुरली उनको लाइब्रेरी खरीद सकती है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी के पास बहुत सारे जो हैं वो फंड्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। जी। रिसोर्सेज भी हैं, यूजर्स भी हैं। हम्म। लेकिन अगर मैं चाहूंगा उसे, तो हम्म। मैं कितने पैसे खर्च कर दूंगा उसके लिए। सही बात। सही बात। तो ऐसा नहीं है। वो जी। लाइब्रेरीज तो एग्जिस्ट करेंगी, और ज्यादा एग्जिस्ट करेंगी इन ई रिसोर्सेज को कंसल्ट करने के लिए। हम्म। दूसरी एक चीज ये होती है कि जो यूजर है, आपको मेथड ऑफ रिट्रीवल नहीं मालूम है। हम्म। मेथड ऑफ रिट्रीवल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसको एक्सेस करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, मुजीब साहब, जी। तो आपको वो तरीके नहीं मालूम, आपको वो चैनल्स नहीं मालूम, आपको वो रिसोर्सेज नहीं मालूम जहां पर उनसे रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। हम्म। उसको कौन बताएगा? हम्म। उसको तो लाइब्रेरी में बताना पड़ेगा ना। सही। समझ रहे हैं आप? तो लाइब्रेरी छोटी सी आना ही और पड़े, तो उसको लाइब्रेरी आना ही पड़ेगा फिर। लाइब्रेरी आना ही पड़ेगा उसको। हम्म। ये हम्म। ये एक और फैसिलिटी टेक्नोलॉजी ने दे दी है। हम्म। लेकिन यहाँ तो इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका वगैरह में, जी, क्या जी। हाई क्लास साइंटिस्ट हैं, उनके पास वक्त नहीं है लाइब्रेरी का आने के लिए। हम्म। तो वो ऐसा होता है कि इंडिविजुअल यूजर एक्सेस दे देते हैं। सही। सही। जी। बिल्कुल। लेकिन वो वही कर सकता है सिर्फ। जी, जी, जी। जी। वो उसको पासवर्ड वगैरह देते हैं। सही। जी साहब, और बताएं ये। जी, तो शावत भाई, क्या कहते हैं, सर सैयद की विरासत की हिफाजत के ताल्लुक से भी आपका एक ख़ास प्रोजेक्ट रहा है, सर सैयद अहमद ख़ान की पर्सनल कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, और उसके रिट्रीवल और प्रिजर्वेशन के ऊपर भी आपने काफ़ी काम किया है। तो ये क्या था, क्या प्रोजेक्ट था ये क्यों ज़रूरी था और आपने कैसे इसको प्रिजर्व किया? आप पहले आदमी हैं जिसने इस चीज के ऊपर कुछ सवाल किया मुझसे, और मैं आपको इसका, देखिए, जवाब बताता हूँ। जी। ऐसा था कि मुख्तसर हिस्ट्री तो सबको मालूम है
सही। आपने भी लिटिल लाइब्रेरी देखी होगी जी, बिल्कुल। सैयद हॉल में, जी, जी, शशि हॉल के साइड में आपने लिटिल लाइब्रेरी देखी होगी। बिल्कुल। तो वो लाइब्रेरी कयाम में आई थी एमएओ कॉलेज के साथ साथ। जी, और क्योंकि उसकी फाउंडेशन लॉर्ड लिटन वाइसरॉय जो थे उन्होंने रखी थी, जी। इस वजह से वो लाइब्रेरी लिटन लाइब्रेरी थी। हुँ, हुँ। तो सर सैयद तो हयात थे उस वक्त। सही। तो सर सैयद की जो जाती लाइब्रेरी थी वो एक न्यूक्लियस बन के उस लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गई, हुँ, हुँ। और वहीं से वो लाइब्रेरी आगे बढ़ी। हुँ, हुँ। अब ये लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी, कॉलेज से यूनिवर्सिटी बना, बढ़ने लगी, तो जाहिर है वो लाइब्रेरी तो बहुत छोटी है। हुँ, हुँ। तो उसको देखते हुए मौलाना आजाद लाइब्रेरी 1955 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने आके उसकी संग बुनियाद रखी थी। वो कन्नी भी मौजूद है जिससे उन्होंने रखा, ईंट रखी थी वो लाइब्रेरी में, हुँ, हुँ। तो लिखा हुआ है इसके ऊपर। जी। और दूसरी ये है कि वही फिर दोबारा से आए 1960 में इस लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन के लिए। अच्छा। तो जहन में ये सवाल हमेशा गर्दिश करता रहा कि जब इस लाइब्रेरी का न्यूक्लियस सर सैयद की पर्सनल लाइब्रेरी से था, तो वो सारा कलेक्शन कहाँ खो गया। हुँ। और लाइब्रेरी का कलेक्शन, जब मैं था उस वक्त 13.5 लाख किताबें थी। अच्छा। अब उसके अंदर ये देखना कि सर सैयद की किताबें कौन सी हैं जो सर सैयद की लाइब्रेरी की, किताबें थी। नॉट ए जोक, यू कैन इमेजिन, सही बात। इट्स नॉट ए जोक, इतनी सारी किताबों में से आप। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफायर उसमें कैच किए। हुँ। आइडेंटिफायर क्या थे? आइडेंटिफायर ये थे कि उस जमाने में, अब भी है, किताब आप किसी को देते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं। किताब सही। आपके पास आती है तो आप गिफ्ट करते हैं, प्रेजेंटेड टू सो एंड सो, आप सिग्नेचर करते हैं, डेट डालते हैं। एक आइडेंटिफायर हुआ ये। हुँ। दूसरा आइडेंटिफायर ये था कि सर सैयद की एक ब्रास की सील थी, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में, या पता नहीं नजर से गुजरी नहीं गुजरी, वो एक छोटी सी एक स्टील या पीतल की होती थी, उसके अंदर एंग्रेविंग होती थी दस्तखत की। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, तो बिल्कुल। वो उस पे लगाते थे, और लगा के जो है कागज पे यूं लगा दिया करते थे। जी, जी, जी। जी, जी, जी। वो तो फिर बाद वो में सर रबर स्टैम्प, सैयद बन गई वो उसी से। उससे बना, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जी, उससे रबर स्टैम्प बना। जी, तो वो जो थी वो सर सैयद के पास जो थी वो मौजूद थी। जी। तो हमने कहा कि आप इसको इन बेसिस के ऊपर किताबों को देखिए। फिर हमें ये देखना था कि सर सैयद का इंटरेस्ट किन चीजों में था, हुँ। कौन सी लैंग्वेजेस के माहिर थे वो। हुँ, हुँ। तो हमने उसको पर्शियन, अरेबिक, उर्दू, इनमें जो है जो कलेक्शन था उसके अंदर लोगों को मोटिवेट किया, लगाया उन्हें, और हुँ। ये आइडेंटिफायर उनको बता दिए। अब वो किताबें निकल के आनी शुरू हुई। क्या बात है! ज़बरदस्त। तो मुजीब साहब रोंगटे खड़े हो गए आई कैन जब वो अंडरस्टैंड। किताबों को हाथ में लिया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड। जी जी बिल्कुल। जी, कि ये सैयद की लाइब्रेरी की है, क्या बात सर है! सैयद की दस्तखत। एक किताब ऐसी है जिसमें सर सैयद ने लिखा है कि मैंने इस किताब को शाही लाइब्रेरी से नकल कराया, इतने पैसे दे के, रकम भी लिखी है उसमें, इतने पैसे दे के, हुँ। कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी का हिस्सा थी। हुँ। ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि वो चीज जो बिल्कुल लोगों के जहन में नहीं थी, वो जी। हमने निकाल के खड़ी कर दी। फिर सही। हमने ये किया कि एक शोकेस बनाया, हुँ। और शोकेस तो मैंने 4 बनाए थे वहां पर। जी, तो बहरहाल आप आके देखिएगा, ये शोकेस जो था, इसके जी। अंदर हमने उनको लगाया, लॉक एंड की में रखा, और उनके साथ हमने जो आइडेंटिफायर के साथ नोट लगाए हुए हैं जी। कि ये किताब है क्या है, हुँ। और कैसे हम कहते हैं कि ये सर सैयद की लाइब्रेरी की है, वो हमने उसके अंदर मेंशन किया है ये उसके अंदर। सही, तो सही। मैंने उसको नाम दिया सर सैयद पर्सनल लाइब्रेरी। और उसके नीचे मजाज का एक शेर लिख के लगा दिया था, एक जी, तख्ती, जो जी, अब नहीं है वहां पे अनफॉर्चुनेटली, जी। कि शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग, चिराग।
शाम दर जो शाम शाम के जलेंगे लिए तेरी तेरी यादों यादों के के चिराग, चिराग। जी। नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। होगा। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात। तो ये है साहब से सैयद पर्सनल लाइब्रेरी की कहानी। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। और आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस शबाद भाई, कि किस अकीदत के साथ आपने इस मिशन पर, इस प्रोजेक्ट पे काम किया होगा। और ये सबसे दिलचस्प सवाल आपसे आखिर में है कि बहुत सारी फैसिनेटिंग डिस्कवरीज हुई जब आपने उसके ख़जाने को खंगाला, जिसमें औरंगज़ेब की तलवार, ये तो बड़ा चर्चा में रहा, अखबारों में आया, उस पे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी वो चर्चे हुए, और बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, सेल डीड्स ऑफ मेडिवल पीरियड थी, और फोटो फ्रेम विद पोर्ट्रेट्स ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां, ताजमहल, और पेन स्टैंड मेड ऑफ सफ़ायर प्रेजेंटेड बाय द फॉरेन मिनिस्टर, या ईरान के किसी मिनिस्टर ने ये दिया था। तो ये बड़ा दिलचस्प वाकया था। तो क्या मुख्तसर तौर पे अगर आप हमारे साथ शेयर करें इसको। आप दुखती रग पे हाथ रख देते हैं बार बार। नहीं तो रग दुखती ही रहनी चाहिए शायद भाई। तभी तभी उसके रवा होने का जो है वो एहसास रहता है। जी। देखिए, ऐसा है कि लाइब्रेरी का जो मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन है, जी। लाइब्रेरी एक्चुअली उसी से जानी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भूत बंगला बना रहा हो हम्म। मेरे मुझसे पहले। जी। बहुत तफसील में जाने का टाइम नहीं है, जी। लेकिन मैंने अब उसके अंदर क्या कर दिया वो आप अपनी तस्वीर में कभी इसके साथ, इंटरव्यू के साथ आप लगा सकें तो लगा दीजिएगा जी। कि उसका हमने एक मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी बहुत वेल फर्निश्ड करके, हम्म। और एक उसके अंदर हमने ये किया कि क्या कहते हैं, एक म्यूजियम, लाइब्रेरी म्यूजियम, जिसके जी। अंदर इन सबको डिस्प्ले किया। जी। इस रीऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में मुजीब साहब ये हुआ कि पता चला कि एक अलमारी जिसकी चाबी खो गई थी 40-45 साल पहले, वो हम्म। दोबारा इसलिए नहीं बनाई कि लोगों के ऊपर कहीं ये इल्जाम लाइब्रेरियन पे ना लग जाए कि उसने चुरा लिए मैन्युस्क्रिप्ट। अच्छा। और एक और थी, वो लकड़ी की अलमारी थी, तो हम्म। उसके अंदर जो है आप सोचिए कि कपड़ा चढ़ा के उसको खड़ा किया हुआ था, कि वो भी बरसा बरस से खड़ी थी। हम्म। मैं तो, मुझे तो जब काम का जुनून चढ़ता है तो चढ़ता है फिर। जी। तो मैंने उसके अंदर ये किया कि उसकी वीडियोग्राफी कराई, हम्म। उनकी चाबियां बनवाई, हम्म। और खुसरो भाई हमारे जज साहब एक्स, तो उनको विटनेस बनाया। उनके सामने वीडियोग्राफी कराई, उसने सामान निकाला। हम्म। इसी तरह से और भी हम आगे बढ़े, तो एक जगह ऐसा था कि आगे तो मखतूते लगे हुए थे, हम्म। पीछे की तरफ जो जगह खाली रहती किताबों के लिए, जी। तो जब मखतूते हटाए तो मालूम हुआ कि वहां तो जखीरा है साहब। खजाना निकला। ठीक है, औरंगजेब की तलवार वहां मिली, कि वो इंटरनेशनल न्यूज बन गई। जी। यहाँ के तो सारे अखबारों में आया, और काफी दिन आता रहा, चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे भी आया, हमारे जी। इंटरव्यूज भी आए। जी। मुझे फोन आया स्पेनिश न्यूज एजेंसी से। अच्छा। तो उसने कहा कि मैं स्पेनिश न्यूज एजेंसी का वो हूँ, नुमाइंदा यहाँ पर, हम्म। दिल्ली में बेस्ड हूँ, मैं आके इंटरव्यू करना चाहता हूँ और उसको देखना चाहता हूँ। हम्म। पिकअप हो गया, आ गया वो। मैंने महसूस किया कि वो शख्स जो है कुछ मुतासिब है, हम्म। क्या पढ़ के आया है, या किसी ने उसको क्या यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अच्छी इमेज नहीं रखता, तो ही वाज इनिशियली वेरी रफ। हम्म। तो पता नहीं क्या बताया उसको लोगों ने हम्म। एमयू के बारे में। हम्म। खैर, मैंने उसको चाय वाय पिलाई, लाइब्रेरी घुमाया, और उसके बाद फिर औरंगजेब की ये तलवार भी दिखाई। हम्म। फिर मैंने उससे कहा कि आप आइए, ये तो इतनी 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, मैं आपको घुमाऊं। गाड़ी में उसको घुमाया, फिर पुराने स्ट्रेची हॉल, मस्जिद वाला एरिया, वो सब दिखाया। धीरे धीरे वो लाइन पे आने हम्म। लगा। हम्म। फिर उसको लंच वगैरह करा के, वाइस चांसलर से मुलाकात करवा के, और वो फिर पीआरओ के हवाले कर दिया मैंने उनको। तो उसी बीच में मैंने उनको ये बताया कि इस यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिश करने का मकसद क्या था, जी। हु वाज द फाउंडर, हु ही वाज। हम्म। और मैंने वो जो एक मशहूर कोटेशन है, वो मैंने जो है उनको बताया। मैंने कहा कि वो ये हमेशा ये कहते थे, और उनके जो राइटिंग्स हैं उसमें ये लिखा भी हुआ है हम्म। कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स
are like two eyes ऑफ अ ब्राइड। of a beautiful bride, of जी a beautiful bride. जी। And if one will be without it, then what will happen, and so on and so on. तो वो हम्म मैंने पूरा जो है उनको सुनाया। अब साहब उसने जो है वहां से जो एक प्रेस नोट बनाया, उसकी कॉपी उसने भेजी, हम्म, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इस वक्त। जो याद है वो मैं बता रहा हूँ। जी। तो उन्होंने उसने लिखा, हाँ, उसने जब मैं घुमा रहा था तो उसने कहा लड़के तो है नहीं, आप कह रहे हैं कि यहाँ 25,000 लड़का पढ़ता है। हम्म कहा दे आर इन द मैंने कहा दे आर इन द क्लासेस, हम्म व्हाई दे विल दे शुड बी ऑन द स्ट्रीट्स। हम्म कहना उसे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ पे लड़का नहीं। उस इत्तेफाक ऐसा था अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था उस हम्म दिन। हम्म तो हम्म उसे बड़ा जबरदस्त इंप्रेशन हुआ। तो मैंने जब उसको ये सारी बातें बताई, तो उसने अपने प्रेस नोट में, और हमारा गेटअप तो बहुत अच्छा है ही है यूनिवर्सिटी का, सही। उसने दिस ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, हम्म एएमयू को उसने कहा। और उसने फिर जब फाउंडर की बात उसमें लिखी अपने प्रेस नोट में, तो हम्म उसने जो है वो कोट किया। वो कोट क्या किया जो मैंने बताया था उसे। तो उसने कहा कि द आइडियल्स ऑफ द फाउंडर ऑफ सर सैयद अहमद खान वर, और उसने लिखा कि बोथ कम्युनिटीज शुड हैव हार्मनी, एंड दे आर लाइक टू ब्यूटिफुल आईज ऑफ ए गर्लफ्रेंड। अच्छा। ब्राइड से तो राइट वो को करता उसने कुछ कर रहे था नहीं, तो उसने अपने प्रेस नोट में ब्राइड को गर्लफ्रेंड कर दिया। हंसी भी आई बहरहाल। जी, इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। तो शहबाज भाई, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और माशाल्लाह बहुत आप एनकरेज। जी जी, वो एक आध बात और रह गई, जी जी जी, और वो प्लीज। कि जी उसके क्या कहते हैं, सोशल साइंस साइबर लाइब्रेरी के बारे में। जी तो सोशल साइंस साइबर लाइब्रेरी के बारे में जो है वो, देखिए, शेयर करने को बहुत सारी चीजें हैं आपके साथ, लेकिन सही। वक्त की बड़ी कमी है। जी सोशल साइंस साइबर लाइब्रेरी जो है ये हमने बनाई, कुछ फंड थोड़ा सा मिला हुआ था, और सब अल्लाह ताला कराता है। उसमें ऐसे कंसेप्ट हमने ले आए कि उस वो, ये समझिए, सेल्फ अपडेटिंग साइट है वो। अच्छा। जी जी, रिसोर्सेज हैं सोशल साइंसेज के ऊपर जो कि खुद ब खुद अपडेट बहुत होते होता है। रहते हैं, ये नहीं किसी को करना पड़े। सही। तो ये उसकी खूबी। तो जैसा आपने बताया, 175 कंट्रीज के अंदर जो है वो सोशल साइंस साइबर लाइब्रेरी को देखा जा रहा है। और अ, वो अ, अब तो खैर काफी वक्त हो गया है उसमें। तो प्रणब मुखर्जी ने आके उसको इनॉग्रेट किया था। प्रेसिडेंट 2000 साहब। जी। प्रेसिडेंट ने जी, उस वक्त 2014 की बात है। सही। और ऑनलाइन ही उन्होंने जो है उसको इनॉग्रेट किया था। हम्म और उसमें एक खास बात यह है कि आप उसको देखिएगा, अभी तो आजकल दोबारा से बन रही है वो। हम्म। तो उसमें हमने सर सैयद की आवाज डाली है। अच्छा, सर सैयद की तो आवाज उसमें, है, मौजूद है। अब ये तो ये एक सीक्रेट है आपके हमारे बीच में, वो इस वक्त शेयर नहीं करूंगा। अच्छा तो अच्छा। जी जी, तो उसके अंदर लिखा हुआ ऑडियो मैसेज ऑफ सर सैयद। तो हम्म जब वो इनॉग्रेट कर रहे थे कैनेडी हॉल में, हम्म तो हम तो प्लान करते हैं अपनी तरह से। तो वो जब उन्होंने इनॉग्रेट जैसे ही किया ऑनलाइन उसको, हम्म तो उस पे क्लिक किया हमारे ऑपरेटर ने, हम्म। और सर सैयद की वो आवाज वो पूरे हॉल में ऐसी गूंजी कि क्या बात। वो एक मिसाल अपने अपने में बन गई। बहुत बहुत मजा आया। बहरहाल, अपनी बात खत्म करते हुए जी फिर बात शुरू की थी एक शेर से, जी और एक शेर से ही खत्म करना चाहूंगा जी। कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। सही बात। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर पत्थर नहीं नहीं देखा। देखा। बहुत उम्दा। बहुत ये उम्दा। फूल ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, सही। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं नहीं देखा। देखा। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बहुत सही। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शवाद भाई, बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, इसलिए कि बहुत एनकरेजिंग बात आपके साथ हमने ये महसूस की कि पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो यू आर
as actively involved in the day-to-day affairs of the university as well as academics के किताबें आप लिख रहे हैं, आपकी किताबें माशाल्लाह लगातार पब्लिश हो रही हैं और अपने प्रोफेशन में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आपने अपने प्रोफेशन को और अपने एल्मा मैटर को एज अ होल अपने अपने मुल्क को सुरखरू किया है। ऑल द वेरी बेस्ट शबाद भाई, और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है और फिर इंशाल्लाह कहीं तो ना सर कहीं। आज मैं ये कहूंगा कि मैंने अपने घर पे अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है, उसी के अंदर अपना लिखता पढ़ता रहता हूँ और वही रूटीन चल रहा है। पोस्ट रिटायरमेंट दो किताबें, एक लंदन से एक न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। अचीवमेंट अपने जी। आप का। लेकिन यह है कि जो हमारे तजर्बे का इस्तेमाल या कुछ प्रॉब्लम्स अब भी जो बहुत सी, मैं ये कहता हूँ कि इस मौलाना आजाद लाइब्रेरी के लिए एक जिंदगी कम है। सही बात है। बिल्कुल। एक कॉइन्स का कलेक्शन है किसी नवाब का, जी। कभी आप तशरीफ लाएं तो काबिले दीद है। सही। और जो उसका केस उन्होंने बनवाया था जी। रोजवुड का, जी। बेइंतहा खूबसूरत है। हम्म। लेकिन उन कॉइन्स के ऊपर वो खुद एक रिसर्च का मौजू है सही। कि वो कॉइन्स कौन से जमाने के हैं, किसके हैं। तो वो कलेक्शन मौजूद है, लेकिन वो लॉक एंड की में रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जी। नेजुल बलागा वाली बात भी रह गई शायद करने के लिए, जी। कि नेजुल बलागा, आप जानते हैं कि हजरत हमारे अली। यहाँ जी। 16,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स में से जो हम्म। है वो सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट तो हजरत अली का कुरान शरीफ है। उसके बाद जो है वो हम्म। ये है नेजुल बलागा। हम्म। और मेरे पास उसकी थोड़ा सा डिटेल भी अवेलेबल है जी। कि वो नेजुल बलागा जो है हमने मिनिस्ट्री, ये ईरान कल्चरल हाउस के थ्रू जो ईरान गवर्नमेंट से एक एमओयू साइन किया था, और उन्होंने उसको नेजुल बलागा को छापा और बहुत खूबसूरत छापा। हम्म। और उसकी खास बात यह है कि वो हमारे यहाँ जो ओल्डेस्ट एक कॉपी है उसकी, वो दुनिया में कहीं नहीं है, उस नजुल बलागा की। अच्छा। और उसकी खास बात यह है मुजीब साहब, उसका मैंने प्रीफेस लिखा है, और उसके अंदर सारी मैन्युस्क्रिप्ट डिवीजन की जो हाईलाइट है और जो अ, उसके बहुत सारे मखतूते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है मैंने। तो इसके अंदर ये हजरत अली के बाद जो उनकी स्पीचेस को या उनके मकौलों को जो कंपाइल किया था, उसका नाम था अली रजी हसन मोहम्मद, हम्म। जो 970 से 1015 एडी, वो उस पीरियड में था, उसने कंपाइल किया था ये अच्छा। वो है। और ये जो नुस्खा है, इसकी और खास बात ये है जी। कि ये बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स के हाथ से इस पीरियड में निकला, जिन्होंने साइड में नोटिंग की हुई है और उन्होंने अपने दस्तखत और तारीख डाली हुई है। और जिन किंग्स के यहाँ रहा वो, उन्होंने अपनी उसके टाइटल पेज के पीछे उन्होंने मोहर लगा रखी है उसके अंदर। तो बेइंतहा बड़ा खूबसूरत। नायाब नुस्खा है बहुत वो। नायाब और यकीन। उनसे हमारा ये तय हुआ था कि आप हमें 500 कॉपी देंगे। तो हमने उसमें, उन्होंने 500 कॉपी दी हमें। और बाकी जो है वो उसको क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो उनका मैटर था। लेकिन हम्म। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया और बहुत खूबसूरत छापा। हम्म। मेरा आइडिया सिर्फ ये था मुझे साहब, जो कि एक फ्लॉप हो गया, हम्म। कि जो हमारे यहाँ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, लोग जिनके बारे में वाकिफ ही नहीं है बिल्कुल, तो ये तो नॉलेज है जिसको आप ये कहेंगे कि जमीन में मतलब एक तरह से दफन है। जी। स्कॉलर्स उसके ऊपर क्या रिसर्च करेंगे जब तक वो सामने नहीं आएगी। सही। तो मेरा ये था कि इस 500 कॉपीज को हम जितनी इस्लामिक लाइब्रेरीज हैं दुनिया में, उनको हम सेल करेंगे हम्म। वाइस चांसलर के परमिशन से, जी। और मतलब फाइनेंस ऑफिस के थ्रू, लाइब्रेरियन इन्वॉल्व उसमें नहीं होगा। तो एक कॉर्पस फंड बनाएंगे उससे हम। हम्म। और वो ऐसी चीज है, उसके लिए कोई भी लाइब्रेरी कितने भी पैसे देने को तैयार होगी। हम्म। और उस कॉर्पस फंड से जो बाकी और मखतूते हैं वो भी नायाब हैं, बिल्कुल। उनको हम धीरे धीरे करके छापेंगे और इस नॉलेज को मंजर आम पे लेके आएंगे, ताकि उसके ऊपर मुख्तलिफ रिसर्चेज होती रहे। सही। ये हमारा आइडिया था, लेकिन वो
कहाँ है वो सारी कॉपीज, उनका कुछ पता नहीं है। चलें शवाद भाई, जब अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, और बहुत सारी दुआएं आपके साथ, आपकी सेहत के लिए और आपके अपने फ्यूचर एंडेवर्स के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।